देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, all the devotees. At the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees and seeking the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, all Vaishnavas. We'll discuss chapter 8, 10 shloka, Bhagavad Gita. प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तयुगबलेन चैव भ्रूवर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम् उपैति दिव्यम्। प्रयाण काले, मृत्यु समय, at the time of death, manasa, by the mind, achalana, achalana means without being deviated, bhaktya, in full devotion, yukta, engaged, yoga balena, by the power of mystic yoga, cha, also, eva, certainly, Bhruva, the two eyebrows, Madhya, between, Pranam, the life air, Avashya, establishing, Samyak, completely. So, he, Tam, that, Param, transcendental, Purusham, personality of Godhead, Upaiti, achieves, Divyam, in the spiritual kingdom. One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviated mind, engage himself in remembering the Supreme Lord in full devotion, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं इसका कैसे एक आदमी इसका एट द टाइम ऑफ डेथ वो रिमेम्बर करते हैं, शरीर त्याग करेगा तो भगवान को प्राप्ति होगा। तो उसी का ये भी इस श्लोक का इम्पोर्टेंस इसी रिलेटेड में है। तो इसमें वन हु एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर एट द टाइम ऑफ डेथ में फिक्सेस इज एयर लाइफ एयर बिटवीन द, ये जो मिस्टिक जोगी उसका बारे में बोल रहे हैं कि जो सतचक्र जोग जो करते हैं षट चक्र, तो उनका जो ट्राई करते हैं कि वो कुंडलिनी को ऊपर उठाते हुए यार मैंने लाइफ एयर प्राणवायु को दो चक्षु का बीच में और आईब्रोज के बीच में ध्यान करते उसको एयर को निकालेंगे। तो उसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं, तो उसको कैसे प्राप्ति हो सकता है। Purport: in this verse it is clearly stated that at the time of death the mind must be fixed in devotion to the Supreme Personality Godhead. For those participating in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows. उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। The practice of Satchakra yoga involving meditation on the six chakras is suggested here. A pure devotee does not practice such yoga और भक्ति yoga। Satchakra, whether a pure devotee does not practice such yoga, but because he is always engaged in Krishna consciousness at the time, at death, he can remember the Supreme Personality Godhead by his grace. This is explained in this verse 14. तो ये यहाँ पे वही है कि जो शुद्ध भक्त है उसके लिए क्या, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट। तो वो सबसे भगवान को चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान का कृपा से, नॉट बाय अपना बल बुद्ध में, अपना चेष्टा है लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो हम चेष्टा करेंगे और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो उनका, इसलिए बाय द ग्रेस, बाय हिज ग्रेस, तो हम लोग उनका ग्रेस का ऊपर में डिपेंड करना पड़ता है। तो साधना करना पड़ेगा, लेकिन साधना से और भी इम्पोर्टेंट है कृपा। तो दोनों मिलेगा तभी हमको भगवान को प्राप्ति हो सकता है। दिस इज एक्सप्लेनिंग दिस वर्स 14। इन वर्स 14 14 में फिर डिटेल में डिस्कस होंगे। The particular use of the word yoga balena is significant in this verse, yoga balena, because without practice of yoga, whether Satchakra yoga or Bhakti yoga, one cannot come to this transcendental state of being at the time of death. तो योग करना पड़ेगा, भगवान को युक्त होना पड़ेगा। तो इधर सतचक्र योग में है या भक्ति योग में। तो भक्ति योग इजिएस्ट है और सबलाइन प्रोसेस है, और इसका ये इजीली भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस है। बट दिस ध्यान योग और सतचक्र योग इज डिफिकल्ट प्रोसेस। One cannot suddenly remember the Supreme Lord at death. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti Yoga. इसलिए प्रभुपाद भक्ति योगा इंपॉर्टेंस सब समय दे रहे हैं। Since one's mind at the death is very disturbed, one should practice transcendence. So yoga during one's life. तो माइंड उस टाइम में डिफिकल्ट टाइम है, और जो एट द टाइम ऑफ डेथ हमारा कफ वित्त पत्तो ये सब का है, ये
कंठ को माने बंद कर देता है, तो उस टाइम में भगवान को रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल है। बट अगर बार-बार प्रैक्टिस किया होगा लाइफ भर, तो उस टाइम में भगवान कृपा करके उसको रिमेम्बर करा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का बारे में डिस्कस किया गया है, षटचक्र योग एंड भक्ति योग। तो अष्टांग योग या भक्ति योग, तो बट दोनों प्रोसेस में मिल सकता है, लेकिन भक्ति योग में इजीली भगवान को प्राप्त हो सकते हैं एंड षटचक्र योग में पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति योग का इम्पोर्टेंस भी फिर प्रभुपाद यहाँ देते हैं। एंड देन 11वें श्लोक में यद अक्षरम वेद विद वदन्ति विशन्ति यद यतत बीतराग यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। Persons who are learned in Vedas, who utter Omkar, and who are great sages in the renounced order, enter into Brahman, desiring such perfection one practice celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. Yat Aksharam. Aksharam means a syllable Om. Veda Vida, person's conversation with Vedas. Veda Vida. Vida means जानना है. वेदों को जो जानते हैं. Vadanti, वो लोग बोलते हैं. Vishanti, enter. Yat, in which Jataya. Jataya means great sages. Yataya. Vitaraga, in the renounced order of life. Yat, that which. Ichanta, desiring brahmacharyam, celibacy. Padam, situation. Sangrahana, in summary. Prabhaksha, I shall explain. So, purport में बोलते हैं, Lord Sri Krishna has recommended to Arjun the practice of Satchakra Yoga, in which one places the air life between the eyebrows. या आज्ञा चक्र का बीच में. तो 6 चक्र, one is आज्ञा चक्र. Taking it for granted that Arjun might not know how to practice Satchakra Yoga, Lord explains the process in the following verses. The Lord says that Brahman, although one without a second, has various manifestation and features, especially for the impersonalist, the Akshara or Omkara, the syllable Om is identical with Brahman. तो कोई ओम का उच्चारण करते हुए जो इम्पर्सनलिस्ट है, हाँ, तो साउंड फॉर्म में, अक्षर फॉर्म में इसको मेडिटेट करते हैं. कृष्ण ही एक्सप्लेन द इम्पर्सनल ब्रह्मन into which the renounced order of sages enter. In the Vedic system of knowledge, students from the very beginning are taught to vibrate Om and learn the ultimate impersonal Brahman by living with the spiritual master in complete celibacy. In this way, they realize two of Brahman's features. This practice is very essential for the students' advancement in spiritual life. But at the moment, such brahmachari or unmarried celibate life is not at all possible. At the moment means आजकल का दुनिया में ये जो सेलिबेसी ब्रह्मचर्य लाइफ में ब्रह्मचर्य पालन करके रहना इतना आसान नहीं है. तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड है चेंज. सोसाइटी चेंज हो गया है. सो मच दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट लाइफ. तो ये वर्ल्ड का सिचुएशन चेंज हो गया है. देखिए, हाँ, आजकल मेन और वुमेन का फ्री मिक्सिंग है एंड सोसाइटी एंड वुमेन ऑल्सो भी इक्वल लेवल में बाहर में आके भी काम करना चाहती हैं. तो इसलिए इसमें वो सेलिब्रेसी मेंटेन करना पहले के जैसे इतना आसान नहीं है. तो थ्रू द वर्ल्ड देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज, बट देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन where students can be educated in the ब्रह्मचर्य प्रिंसिपल्स. पहले गुरुकुल था जहाँ की ब्रह्मचर्य का पर में ब्रह्मचर्य लोग जाकर पठन करते थे एंड उसका बारे में डिस्कस भी होता है. तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सिचुएशन कंड्यूसिव था. अभी कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है इस टाइप का जो ब्रह्मचर्य के बारे में पालन करने के लिए इनकरेज करते हैं. बहुत रेयर है एंड उसमें कोई इसका बारे में डिस्कस भी नहीं होता है. So, but there is no recognized institution where students can be educated. Unless one practice celibacy, advancement in spiritual life is very difficult. So therefore, Lord Chaitanya has announced, according to the scriptural injunctions for this age of Kali, that in this age, no process of realizing the Supreme is possible except the chanting of the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इसमें एक
कलयुग में इजीएस्ट प्रोसेस दे दिया भगवान ने। अगर ब्रह्मचर्य में रहो, गृहस्थ में रहो, वानप्रस्थ में रहो, सन्यास में रहो, कोई भी लाइफ में रहो, बट हरिनाम करने से इजीली हम भगवान को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है कि ब्रह्मचर्य पालन करना। तो जो ओंकार जो पर्सनल वाला, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य वो मैरिज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला कुछ भी करो लेकिन भगवान को जोड़ के रहना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ भी रह सकते हैं, गृहस्थ लाइफ में भी भगवान को जोड़ना है। तो दैट्स व्हाई कोई भी प्रोसेस, कोई भी स्टेजेस ऑफ लाइफ में रह सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट प्रोसेस से भगवान का नाम करके हम भगवान से युक्त हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बोले कि कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का माध्यम में भक्ति योग में रहते हुए एक इजीली जो डिफिकल्ट प्रोसेस सेलिब्रेसी को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसमें इजीली उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो 24 आवर्स अगर कृष्ण का सेवा में लगेंगे तो इसीलिए इसमें इजीली भगवान को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे ये बताते हैं। तो देन 12 श्लोकों में सर्वद्वारेणी समयम मनो हृदि निरुद्धया च मूर्धन्ति अध्यात्मनः प्राणम अस्तित्व जोग धारणम। The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. तो योगा प्रोसेस का बहुत क्राइटेरिया है कि सेलिब्रेसी मेंटेन करें, प्रॉपर पोस्चर में बैठना पड़ेगा, सेलिब्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा, एंड प्रॉपर कितना लो आसन में नहीं बैठना, बहुत ऊंचा आसन में नहीं बैठना, आंखों को बहुत क्लोज नहीं करना, पूरा नहीं बंद कर देना, पूरा खुला भी नहीं रखना है। तो इस टाइप का, एंड टिप ऑफ द नोज को ध्यान करना पड़ेगा। तो इस टाइप का बहुत सारे इसमें है। और इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट है, सेक्सुअल लाइफ इज नॉट अलाउड, सेलिब्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। लेकिन भक्ति योग प्रोसेस में सेक्स लाइफ भी अलाउड है, बट इट इज फॉर एज ए सर्विस टू गुरु एंड कृष्ण टू रेज दिस कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड। इसलिए क्योंकि मालूम था यहाँ पे जो कलयुग में ये सेलिब्रेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए सम रिलैक्सेशन इज गिवन। तो फर्दी कैसे उसको हम भक्ति में जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डिफिकल्टी ऑफ ध्यान योग का या अष्टांग योग का या षटचक्र योग का बारे में डिस्कस किया गया है, और कैसे इजीली भक्ति मार्ग में एक आदमी रह के भगवान को प्राप्त कर सकता है ये कलयुग में। इसका हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग करते हुए तो चैतन्य आए हैं, दिए हैं। तो कलयुग का ना जो धर्म है प्रचार करके गए हैं, तो उसको लेके इजीली एक भगवत धाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। So the yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. Purport, Srila Prabhupada ki jai. To practice yoga is as suggested here, one first has to close the doors of all sense enjoyment. This practice is called pratyahara or withdrawing the senses from the sense objects. तो हम लोग जानते हैं कि पहले भी डिस्कस किया थे, तो आसन, प्राणायाम, ध्यान, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये स्टेज में जाना पड़ेगा। तो प्रत्याहार मीन्स इंद्रियों को इंद्रिय भोग वस्तु से निकलना है, विड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको प्रत्याहार बोलते हैं। देन भगवान का ऊपर में फिक्स करना है, विष्णु का ऊपर में फॉर्म में। The sense organs for acquiring knowledge, the eyes, ear, nose, tongue and touch should be fully controlled and should not be allowed to engage in self gratification. In this way, the mind focuses on the super soul in the heart, and the life force is raised to the top of the head. In the 6th chapter, this process is described in detail. But as mentioned before, this practice is not practical in this age. The best process is Krishna consciousness. If one is always able to fix his mind on Krishna in devotional service, it is very easy for him to remain in an undisturbed transcendental trance or in samadhi. तो भक्ति प्रोसेस ये समाधि स्टेज में जहाँ पे ध्यान योग खत्म हो जाता है, भक्ति योग वहीं से स्टार्ट होता है। तो अष्टांग योग में जहाँ पे 8th स्टेज में समाधि आता है, भक्ति योग में समाधि से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो माइंड में भगवान को फिक्स करना है, इसको बोलते समाधि। इसलिए ये इजीएस्ट प्रोसेस है और सबलाइम प्रोसेस है एंड हायर प्रोसेस है। 13 श्लोक, ओमिति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यो प्रयाति त्यजन देहम स्वजाति परमम गतिम
After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. तो ये प्रोसेस में फिर भगवान को ध्यान भी करना पड़ेगा. इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर दैट ओम ब्रह्मन एंड लॉर्ड कृष्ण आर नॉन डिफरेंट. ओम जो ब्रह्मन है और परम परम ब्रह्मा एंड लॉर्ड कृष्ण इज नॉन डिफरेंट. The impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna contains Om. तो हम लोग डिस्कस करते थे, पहले भी किए हैं. तो ओम हरे कृष्ण महामंत्र में ओम है. हम लोग कोई पूछता है जितना भी वैदिक मंत्र है ओम से शुरू होता है, तो कोई बोलते हैं आप वेदोध्ययन करते नहीं क्या. तो हम लोग वेद का भी प्रैक्टिस करते हैं. मतलब ओम जो है हरे कृष्ण महामंत्र में इंक्लूडेड है. द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि ओम में क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा. तो हरे कृष्ण महामंत्र पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा, राधारानी एंड कृष्णा. और जीव का प्रेयर, भगवान राधारानी को प्रेयर करते हैं कि कृष्ण का इन सेवा में एनगेज करने के लिए. तो ये सेम चीज है. ओ ऊ म, तो ओ मीन्स ओ मीन्स कृष्णा, ओ मीन्स राधारानी एंड म मीन्स जीवा. ओम में वही है जो कि हरे कृष्ण महामंत्र में सेम है. तो इफ वन क्विट्स हिज बॉडी एट द एंड ऑफ लाइफ चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, he certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of his practice. Devotees of Krishna enter the Krishna planet, Golok Vrindavan. For the personalists, there are also innumerable other planets known as Vaikuntha planets in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the Brahma Jyoti. तो ये इम्पर्सनल जो है ओम करते हुए कहाँ जाएंगे, वो इम्पर्सनल फॉर्म में मेडिटेट करते हैं भगवान का ज्योति निराकार फॉर्म. ओम जी साउंड इनकारनेशन और साउंड फॉर्म ऑफ ब्राह्मण भगवान. तो ये इम्पर्सनल फॉर्म में है. तो इसलिए इनको ब्रह्म ज्योति में जाकर रह जाएंगे. लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है वो कहाँ जाएगा, तो वो इधर एनी ऑफ दी वैकुंठ प्लैनेट जाएंगे, क्योंकि भगवान को पर्सनल फॉर्म इधर विष्णु रूप में पूजा कर रहे हैं या भगवान कृष्ण रूप में पूजा करते हैं. तो कृष्ण रूप में करने से गोलोक वृंदावन जाएंगे, विष्णु रूप में पूजा करने से विष्णु वैकुंठ प्लैनेट जाएंगे. तो इसलिए बट दोज ऑल आर स्पिरिचुअल स्काई, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स. तो इसलिए वहाँ पे वो जा सकता है. इसलिए यहाँ पे भक्ति योग का इम्पोर्टेंस और हाउ इट इज बेटर देन दिस ओंग वाइब्रेशन. चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र इज बेटर देन ओंग वाइब्रेशन, यहाँ पे बताया गया. तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं आप तो ओंग, हम लोग ओम करके ध्यान करते हैं. तो उनका जो ओम करके ध्यान करने से इम्पर्सनल फॉर्म में करने से ब्रह्मज्योति तक जाएंगे, लेकिन भक्त जो है वो इधर वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकता है. इसलिए ये बेटर पोजीशन है. 14 श्लोक में अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यस्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त सुजोगिना. यहाँ पे ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है. अनन्य चेता, अनन्य चेतना, चेतना माइंड, अनन्य भाव में विदाउट डिविएशन ऑफ द माइंड, अनन्य चेता. सतत मीन्स ऑलवेज. जो anyone who माम मीन्स मी कृष्णा, स्मरति रिमेम्बर्स, नित्यस रेगुलरली, तस्य टू हिम अहम आई एम सुलभ, very easily achieve, very easy to achieve. To love means easily available. Partha or son of Pritha, nitya regularly, yuktasya engage, yogina for the devotee. For one who always remember me without deviation, I am easy to obtain. O son of Pritha, because of this constant engagement in devotional, of his constant engagement in devotional service. तो यहाँ पे भगवान बोले पार्थ देखो मेरे को पाना बहुत इजी है, ऑलवेज जो मेरे को चिंता करेगा तो वो मेरे को प्राप्त हो सकता है. तो ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है. कैसे भी हो भगवान को रिमेम्बर करो. जनो तनो प्रकार कृष्ण मन निवसयत. तो कैसे भी हो कृष्ण का पास में माइंड को फिक्स करना पड़ेगा. उनका साउंड वाइब्रेशन हरे कृष्ण महामंत्र का थ्रू में हो, कीर्तन श्रवण करते हुए हो, या उनका लिए कोई भी दास्य का हिसाब से कोई सेवा करके उनका मंदिर को मार्जना करते हुए, इनका अर्चन करते हुए, भगवान का दास्य रूप में हम लोग उनका सेवा, जैसे पुस्तक भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी दास्य रूप फॉर्म में आ जाएगा. तो उस टाइप का हम भी कुछ भी सेवा उनका करते हैं, तो उस माध्यम में भगवान से जोड़ने से इजीली भगवान को प्राप्त हो सकता है कलियुग में. तो परपोर्ट दिस वर्स स्पेशली डिस्क्राइब द फाइनल डेस्टिनेशन अटेन्ड बाय द अनअलर्ड डिवोटीज who serve the supreme personality Godhead in bhakti yoga. Previous verse have mentioned 4 different kinds of devotees
पहले हम लोग डिस्कस किया था। द आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, different processes of liberation have also been described. Karma yoga, jnana yoga, hatha yoga. The principles of these yoga systems have also have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of jnana, karma और hatha. तो हम तो जानते हैं भक्ति दो टाइप का होता है बेसिकली, एक अनन्य भक्ति और केवल भक्ति, अनमिक्स्ड भक्ति, उसमें कोई मिक्स नहीं है। कर्म ज्ञान ध्यान का मिक्स नहीं है। और एक मिक्स्ड भक्ति है जिसमें कि कर्म का मिक्सर, ज्ञानों का कुछ थोड़ा सा होगा या कर्म का होगा या ध्यान का होगा, तो इस टाइप का ये प्योर भक्ति नहीं है। So these principles of the yoga system have also bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of jnana, karma, hatha. Hatha means dhyana. So as indicated by the word ananya cheta, अन्नो अन्य अनन्य, अनन्य चेता, कॉन्शियसनेस में अन्य कुछ नहीं रहेगा, तो ओनली भगवान रहेंगे। इन प्योर भक्ति योगा द डिवोटी डिजायर नथिंग बट कृष्णा। ए प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर प्रमोशन टू हेवनली प्लैनेट्स, नॉट डज ही सीक वननेस विद द ब्रह्मज्योति और सैल्वेशन और लिबरेशन फ्रॉम द मैटेरियल एंटेंगलमेंट। तो भक्त जो है इवन ब्रह्मज्योति में मिलना नहीं चाहता है, या हमको हायर प्लैनेट में ले जाओ वो नहीं सोचता है, या इसी इसमें रहते हुए भी जो इस लिबरेशन या मुक्ति प्राप्ति करने के लिए नहीं चाहता है, तो इसलिए वो भक्ति चाहता है। ए प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर एनीथिंग। इन द चैतन्य चरितामृत प्योर डिवोटी इज कॉल्ड निष्काम, व्हिच मीन्स ही हैज नो डिजायर फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत, और कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत। तो भुक्ति वाला भी कुछ चाहता है, कर्मी वो चाहता है मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट हमको अच्छा मिले, तो पुण्य कर्म करेगा। तो ज्ञानी भगवान का बारे में ज्ञान आहरण करते हुए उनका इम्पर्सनल फॉर्म में ध्यान करना चाहता है। और भक्त जो ध्यान हट जो वो भी आइदर ही माइट मेडिटेट ऑन इम्पर्सनल फॉर्म और ही माइट ऑल्सो मेडिटेट ऑन विष्णु फॉर्म इन हार्ट। तो इसलिए जो ब्राह्मण फॉर्म में उनको रियलाइज करना चाहता है तो वो ब्राह्मण फॉर्म में रहेगा, इम्पर्सनल फॉर्म में जाएगा। जो विष्णु फॉर्म में करेगा तो वो फाइनली वो विष्णु लोग को जा सकता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है ध्यान योग। इसीलिए भक्ति योग इज इजीएस्ट प्रोसेस इन व्हिच टू गो टू वैकुंठ प्लैनेट कृष्णा लोक गोलोक वृंदावन इज इजी, बिकॉज 24 आवर्स कृष्ण के बारे में सोचते हुए सेवा में एंगेज होते हुए अगर करता है तो इसीलिए प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर एनीथिंग। अच्छा, इसलिए निष्काम बोलते हैं। Whereas ज्ञान योगी और कर्मयोगी हठ योगी हैज हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ए परफेक्ट डिवोटी हैज नो डिजायर अदर देन टू प्लीज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो जो शुद्ध भक्त है वो कहा चाहते हैं, उनका कोई अपना पर्सनल डिजायर नहीं है, वो चाहते हैं मैं कैसे भगवान को खुश करूं। तो देयरफॉर द लॉर्ड सेज दैट फॉर एनीवन हु इज इंटेलिजेंटली डिवोटेड टू हिम ही इज इजी टू अटेन। तो इसलिए बोले अनन्य चेतन में जो जुड़ता है स्मृति नित्यस्य तस्याम सुलभ पार्थ, तो उनको मैं इजीली प्राप्त हो जाता हूँ। लेकिन जो इम्पर्सनल फॉर्म में और दूसरा फॉर्म में ट्राई करता है तो उसको मैं इजीली प्राप्त नहीं होता हूँ। A pure devotee always engages in devotional service to Krishna in one of his various personal features. Krishna's various planetary expansions and incarnations such as Raman and Nrsimha, and devotee can choose to fix his mind in loving service to any of these transcendental forms of Supreme Lord. Such a devotee meets with none of the problems that plague these practitioners of other yogas. Bhakti yoga is very simple and very easy, pure and easy to perform. तो दूसरा प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, भक्ति योग में प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम है कि इम्पर्सनल फॉर्म में माइंड को फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है, या निराकार ऊपर में ब्लैंक में। लेकिन भक्ति में माइंड को फिक्स करना इजी होता है, क्योंकि साकार रूप में भगवान का सेवा करना, पर्सनल सर्विस में एंगेज होना, उनके लिए भोग लगाना है, आरती करना, ये सब पर्सनल फॉर्म में कर सकते हैं रिलेशनशिप। Such a devotee meets with none of the problems of the plague the, तो इसलिए ये योग अदर योग में जो प्रॉब्लम है भक्ति योग में वो टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति इज वेरी सिंपल एंड प्योर एंड इजी टू परफॉर्म। वन कैन बिगिन सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। तो जो अ, जीव से शुरू करके ये हरि नाम का चैंटिंग जीव से जीवा से होता है, इजीली भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लॉर्ड इज मर्सीफुल ऑफ ऑल, but as we have already explained, he is especially inclined toward devotee, those who always serve him
without deviation. The Lord helps such devotee in various ways. As stated in Vedas, Kathan Purusha 1.2.23, Yam evaisha brinyutu teno rabhyas tasais atma vibrinute tanum swam. One who is fully surrendered and engaged in devotional service of the Supreme Lord can understand the Supreme Lord as he is. And as stated in Bhagavad Gita 10.10, Tadami buddhi yogam tam. तो भगवान बोल रहे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जो गौतम जन्माम उपयंती थे। जो अगर वो मेरे साथ में प्रीतिपूर्ण भाव में कंटिन्यूस से जुड़ा है तो मैं उसको बुद्धि दूंगा जिसका बलबूत में वो मेरा पास में आ सकता है, तो वो बुद्धि वही देंगे। बुद्धि योग द लॉर्ड गिव्स सच ए डिवोटी सफिशिएंट इंटेलिजेंस सो दैट अल्टीमेटली द डिवोटी कैन अटेन हिम इन हिज स्पिरिचुअल किंगडम। तो भगवान सब कुछ कराते हैं, बुद्धि भी वही देते हैं, पास में भी वही लाते हैं, तो सब कुछ वही करते हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ द प्योर डिवोटी दैट ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा विदाउट डेविएशन एंड विदाउट कंसीडरिंग द टाइम और प्लेस। तो ये प्योर डिवोटी का यहाँ पे एक डेफिनेशन दिए दिए हैं। प्योर डिवोटी का वो क्या है स्पेशल क्वालिफिकेशन, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा without considering in time and place circumstances, he can remember Krishna always. This should be there should be no impediment. He should be able to carry out his service anywhere and at any time. Some say that the devotee should remain in a holy place like Vrindavan or some holy town where the Lord lived. But a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavan by his devotional service. It was Sri Advaita who told Lord Chaitanya, wherever you are, O Lord, there is Vrindavan. तो इसलिए हम लोग सोचते हैं वृंदावन अच्छा है, वृंदावन में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने बताते हैं कि जहाँ पे भक्त जहाँ पे रहता है वहीं पे वृंदावन हो जाता है। तो इसलिए नारद मुनि को तो ये जो बोलते हैं कि नारद भगवान बोलते हैं कि नारद मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता हूँ, तो बोलते हैं कि ना नाहम तिष्ठामि वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। न च जोगी नाम हृदय च, मैं जोगी का हृदय जो मेडिटेट करता है उसमें भी नहीं रहता हूँ। चत्र गावत्रे मत भक्त तत्व तिष्ठामि नारद, जिस जहाँ पे मेरा भक्त मेरा बारे में कुछ गाना ग्लोरिफिकेशन करता है या उनका गान गाता है, उनका बारे में जो भी डिस्कस करता है, तो वहीं पे मैं प्रेजेंट रहता हूँ। तो भगवान अभी हमारा इसमें प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बिकॉज हम लोग उनका बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनका लीला के बारे में, उनका गुण के बारे में सब डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए अद्वैताचार्य इसलिए बोले जिस टाइम में चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना था, तो वहाँ पे उनको नित्यानंद प्रभु कुछ लोगों को बच्चे लोग को बता दिया, जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु इस रास्ते में जाएंगे तो हम बता देना, वो वृंदावन वो गंगा नदी को किनारे में जाएंगे, जाके वो धीरे धीरे आगे जाके वृंदावन जाना था उनको। तो लेकिन ये जो है वेस्ट बंगाल में वो जो नवद्वीप का उस आसपास में, तो वहाँ पे वो बोल देंगे, वो बोल दिए कि देखो अगर कोई चैतन्य प्रभु आएंगे पूछेंगे तो रास्ता किधर जाता है वृंदावन के लिए, तो आप बता देना आप तो ऑलरेडी वृंदावन में पहुंच गया, और वो रास्ता उल्टा दिखा था, इस रास्ते में जाइए, मतलब उल्टा रास्ता दिखा दिया जहाँ पे शांतिपुर में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे जाके फिर, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि प्रभु महाप्रभु जैसे उनका पास में रहे और वृंदावन जाने से इनका संग नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो ऐसे बोल दिया है। तो महाप्रभु भी भावाभ्यास में रहते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है, वो लीला करते हैं कि हम कहाँ पे है, कौन सा ये नदी है, तो वो बोलते हैं कि ये कौन सा नदी है, ये गंगा नहीं बोलता है, जमुना नदी है, और इसी रास्ते में आप थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे वृंदावन। यहाँ पे जाके वो फिर शांतिपुर में अद्वैताचार्य का घर का उधर से उसी आसपास में फिर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे उसी टाइम में अद्वैताचार्य ये बोलते मैं कहाँ आ गया, चेतना बोल रहा अरे मैं इधर कैसे आ गया, ये तुम्हारा घर है। अद्वैताचार्य का घर का पास में आ जाते हैं, तो देन वो बोलते हैं कि अद्वैताचार्य, इसलिए भगवान चेतना बोलते हैं यही तो वृंदावन रे भाई, यही तो वृंदावन। इसमें ये बोलते हैं कि आप जहाँ पे आप है वही वृंदावन है, तो जहाँ भगवान है फॉर एवर यू आर सो दैट इज वृंदावन। सो यहीं पे जहाँ आप है आप वहीं पे वृंदावन बन जाता है, तो भगवान जहाँ रहेंगे वहीं वृंदावन है। तो हम लोग सोचते हैं वृंदावन अच्छा है, गुड है, मायापुर धाम है, जगन्नाथ धाम है, सब धाम है, तो उस धाम में तो ठीक है बास करना चाहिए, लेकिन धाम में वास करके अगर भगवान का सेवा नहीं करते हैं तो वो धाम में वास करने का जितना फायदा है उतना नहीं मिलता है। तो भगवान का सेवा करें, तो जहाँ पे हम लोग रह के भगवान का सेवा कर सकते हैं, तो इसीलिए
भक्त लोग कभी कहीं पे भी उनको नर्क को भेज दें, वो भी चला जाते हैं। तो नर्क में जाके होकर वहाँ पे कोई सेवा है, प्रीचिंग सेवा है, कुछ सेवा है भगवान का, तो वो करेगा उधर जाके, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने जो एट द एज ऑफ 70 वो अमेरिका गए, वृंदावन छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको चारों तरफ में होल वर्ल्ड में वृंदावन बनाना था। तो जितना भी टेम्पल प्रभुपाद बनाए 100 टेम्पल दीज ऑल आर वैकुंठस। एक-एक वैकुंठ है, बोलते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड में ये भी वैकुंठ है। तो क्योंकि ये वहाँ पे कुंठा नहीं है, वहाँ पे हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा जितना दुःख है वो हम भूल जाते हैं, भगवान का ऐसे पास में आ जाते हैं तो। तो इसीलिए एक-एक मरुभूमि में जैसे बोलते हैं ओएसिस है, तो इस टाइप का है यहाँ पे। ओएसिस में थोड़ा पानी मिलता है और कुछ प पेड़-पत्ता रहता है, खजूर का पेड़ रहता है, इस टाइप का। तो वहाँ पे थोड़ा-सा जो पानी ये सब मिलता है, मतलब जो लोग डिफ़िकल्टी में है उसके लिए तो पानी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे वैकुंठ बना दिए प्रभुपाद ने, और हम लोग को ये वैकुंठ में कहीं पे भी रहें, तो इसलिए अगर वहाँ पे सेवा नहीं है, तो वो जगह हमारे लिए अच्छा नहीं है, वैकुंठ नहीं है। तो हम जहाँ रहेंगे वहाँ पे भगवान का सेवा करना है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। प्रभुपाद ने ये बोल दिया, "ए प्योर डिवोटी कैन लिव एवरीवेयर एंड क्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ वृंदावन।" तो शुद्ध भक्त जहाँ जाते हैं, प्रभुपाद जहाँ गए, उनका जो शुद्ध भक्त जो शिष्य लोग जहाँ गए, वहाँ पे एक-एक जगह में मंदिर बना दिए या बोल दिए ये मंदिर यहाँ बनाओ, या कोई बना दिए, तो उस टाइम में वहाँ पे वैकुंठ बन जाता है। तो हम लोग इसीलिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि वृंदावन में रह के रहना इतना आसान नहीं है, और वृंदावन में रह के हम तो द्वेष भाव नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए हम योग्य नहीं है, और इसीलिए वहाँ पे भी कोई ऑफ़ेंस हो जाएगा क्योंकि भक्त लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे जो रहेगा, ही शुड बी वेरी हाई लेवल में डिटैच्ड होना चाहिए, भगवान के प्रति बहुत प्रीति होना चाहिए। एंड अदरवाइज़ हम लोग जहाँ पे भी रहेंगे, वहाँ पे वृंदावन को बनाने के लिए प्रभुपाद का आशीर्वाद से वो उनका सेवा में लग जाना है। इसलिए एनीवेयर यू लिव क्रिएट दिस वृंदावन सिचुएशंस। तो घर को वृंदावन बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे भगवान का सेवा लेंगे करेंगे। तो उस टाइप का नहीं करेंगे तो हम वृंदावन रहते भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम वृंदावन रहते हैं, कुछ मायने फ़ायदा रहेगा, लेकिन सेवा नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वृंदावन में रह के सेवा नहीं करेगा, दैट इज़ नॉट वृंदावन। तो वृंदावन हमारे लिए वृंदावन नहीं है वो। तो वृंदावन को सेवा जहाँ करेंगे, भगवान वहाँ प्रेज़ेंट रहेंगे, तो भगवान का प्रेज़ेंस में वो वृंदावन हो जाता है। जहाँ पे सेवा नहीं है, भगवान वहाँ नहीं रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आप जहाँ पे है, वहीं पे वृंदावन है। तो हम लोग को वृंदावन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, आप जहाँ पे भी जाइए, भगवान का भक्त को सेंटर में रखो और सेवा करते जाओ। एज इंडिकेटेड बाय द वर्ड सततम एंड नित्यस, व्हिच मीन्स ऑलवेज, रेगुलरली और एवरी डे। ए प्योर डिवोटी कॉन्स्टेंटली रिमेंबर कृष्णा एंड मेडिटेट्स अपॉन हिम। These are qualifications of the pure devotee of for whom the Lord is most easily available. तो भक्ति भगवान प्योर शुद्ध भक्त को इजीली प्राप्त हो जाते हैं। तो लेकिन भक्ति योगा इज द सिस्टम ऑफ दैट द गीता रिकमेंड्स अबव ऑल अदर्स। जनरली भक्ति योगी आर एंगेज इन द 5 डिफरेंट वेज। शांत भक्त एंगेज इन डिवोशनल सर्विस इन न्यूट्रलिटी, दास्य भक्त एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द सर्वेंट, Shakya Bhakta engage a friend, Vatsalya Bhakta engage as a parents, and Madhurya Bhakta engage as conjugal lover of Supreme Lord, of the Supreme Lord. In any of these ways, the pure devotee is always constantly engaged in the transcendental loving service of the Supreme Lord and cannot forget the Supreme Lord, and so for him, the Lord is easily attained. A pure devotee cannot forget the Supreme Lord for a moment. तो शुद्ध भक्त है जो कि एक मोमेंट भी भगवान को नहीं भूलता है, for a moment. So this is the regret with blessings of Krishna conscious process of chanting Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Always remember Krishna करने के लिए chanting, श्रवण कीर्तन कंटिन्यू करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो ऑलवेज हमें इनको बैक ऑफ द माइंड में हरे कृष्ण महामंत्र चलना पड़ेगा। तो ये करने से हम कंटिन्यूसली भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, जान सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनं संसिद्धिं परामां गता। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मेरे को एक बार प्राप्त हो गया तो ये पुनर्जन्म इसका नहीं होता है, या दुःखालय का शश्वतम जगह में नहीं आता है। तो आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ मिजरीज बिकॉज दे हैव अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन। तो ये दुःखालयम है, अशाश्वतम है, टेम्पररी है, फुल ऑफ मिजरी है। तो मेरे को प्राप्त होगा, भगवान बोलते हैं
कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है या दुखाड़े में नहीं आता है, यहाँ पे टेम्परेरीनेस में नहीं रहता है, वो मेरा धाम में रहता है, मेरे पास में जाता है। नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धिं परामां गता। तो परमा मीन्स अल्टीमेट गता, गति, हैविंग अचीव्ड संसिद्धि, परफेक्शन। तो ये महात्मा द ग्रेट सोल्स, इनका यही काम है, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो सिंस दिस टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज ऑफ द बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 दुख है। नेचुरली ही हू अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन एंड अटेन सुप्रीम प्लैनेट कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन डज नॉट विश टू रिटर्न। द सुप्रीम प्लैनेट इज डिस्क्राइब्ड इन वैदिक लिटरेचर एज अव्यक्त एंड अक्षर एंड परमाम गति। तो सुप्रीम प्लैनेट को अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड बोलते हैं, एंड अक्षर, इसका क्षर नहीं होता है या इसका कोई व्यय नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कभी इसका चेंजेस नहीं है, ये क्षय नहीं होता है। एंड परामगति इज सुप्रीम डेस्टिनेशन। In other words, that planet is beyond our material vision and is inexplicable, but it is the highest goal, the destination of the Mahatmas, great souls. वहाँ जाना चाहते हैं spiritual planets में। The Mahatma receive the transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planets. तो क्यों spiritual planet में नहीं जाना चाहेगा? तो क्योंकि उनको जहाँ पे भी सेवा कर मिलेगा वहीं पे रहना है। तो सेवक का काम है सेवा करना, तो सेवा नहीं मिलेगा तो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में अगर भी सेवा नहीं मिलेगा तो वहाँ जाके क्या करेगा? लेकिन यहाँ पे मेटल वर्ल्ड में अगर सेवा मिल गया भगवान का सेवा करने के लिए, तो ये भी उनके लिए वृंदावन है, तो वहीं वैकुंठ है। तो दे ओनली वांट कृष्णा एंड कृष्ण एसोसिएशन, नथिंग एल्स। तो वो लोग नहीं चाहते सेल्फ एंजॉयमेंट, हम जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छा है, हाँ, तो बदुच्य मणि में रास्ता बना हुआ है, तो यहाँ पे अच्छा बंगलो है, हम लोग का अच्छा खाना पीना सब अच्छा है। तो वहाँ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है। वो चाहता है उसको कुछ नहीं चाहिए, जहाँ कृष्णा है, वो कृष्णा का सेवा है तो वहीं रहेगा। तो दे ओनली वांट कृष्णा कृष्ण एसोसिएशन, नथिंग एल्स, दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हमारा परफेक्शन ये होना चाहिए कि हम कृष्णा का सेवा में सब समय एंगेज रहें। तो this verse especially mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. The devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection life. In other words, they are supreme souls. तो जो शुद्ध भक्त है उसको बोलते हैं सुप्रीम सोल्स है। इसीलिए हमारा आज का जो डिस्कशन है इसमें ये महामे पत्य पुनर्जन्म दुखालय मशोषतम नापनुवंती महात्मा संसिद्धिम परमाम गता। तो मेरे को पाने के बाद में फिर ये मेरा इधर नहीं आएगा, हाँ, वो परम धाम को चला जाएगा। सो योगी नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ मिजरीज बिकॉज दे हैव अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन। संसिद्धि, संसिद्धि परम गति, संसिद्धि हरितोषणम। तो हमारा एक्चुअल लाइफ का परफेक्शन वही होता है, परम गति कब प्राप्त करेगा? जो हरि का तोषण करेगा, भगवान को खुश करेगा सेवा करके, उसको बोलते हैं संसिद्धि। तो संसिद्धि परम गता, तो भगवान का सेवा करेगा तो परम गति प्राप्त होगा, और उनका खुश करना हमारा परम सौभाग्य है, और परम गति वही होता है, संसिद्धि वही है, परफेक्शन वही है। कि सेवक का परफेक्शन कब है? जो अच्छा से शुद्ध भाव से भगवान का कंटिन्यूअसली ऑलवेज एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सेवा करेगा। तो इसलिए सभी पुंस परधर्म जतो भक्ति अध्यक्ष जे अहेतु की अप्रतिहत आत्मा सुप्रसिद्धि। तो आत्मा खुश हो जाएगा जब भगवान का अहेतु की कृपा से उनका सेवा में कंटिन्यूअसली जुड़े, and without any deviation, without any interruption, and without any अहेतुकी, without any cause। तो ये करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। एनीबॉडी वांट्स टू